I am Dr. Amit. I'm a plastic surgeon and director of Divine Cosmetic Surgery. We are located in South Extension, Part 2 in Delhi. One of our key areas of work is with hair transplant. Now, hair transplant के बारे में, it is one of the commonest plastic surgeries in men. And बहुत लोग confuse होते हैं कि hair transplant है क्या चीज़. Hair transplant is basically a redistribution of hair. हम लोग एक permanent zone जो हमारा back of the head होता है वहाँ से बाल लेते हैं and we implant in the recipient segment जहाँ बाल कम है, which may be the front, top portion or even the crown. Now hair transplant एक single step process होता है. अगर हमको front का area cover करना है तो 2,500-3 हज़ार बाल में front हो जाता है and suppose baldness is extending till the back तो even 9 से 10 हज़ार बाल हम लोग एक single session में easily plan out कर सकते हैं. Starts to lose hair will actually copy the hair loss pattern of his parents, father, grandfather. So all the hair fall in, let's say 90% of patients is actually genetic in nature and what we call as male pattern baldness. However, there are other causes as well. For example, excessive smoking is a very important cause. Lack of poor diet, poor minerals and vitamin intake. You know, people are lot into junk foods and late nights and the stress of the jobs. That also does cause some of hair fall. Water, extremely salty water, having bath with salty water, saline water, can cause very excessive hair fall. In addition, use of ammonia containing hair dyes is a very important cause of graying as well as falling of hair. Use of hair straightening treatments, which is done by women a lot in parlors, is a very, very bad thing for hair. And the amount of hair lost after a hair straightening procedure is immense. So that's one of the most disastrous thing a lady can do for her own hair. Deficiency of iron, vitamin D is known, and thyroid is a very important cause of hair loss as well. So there are a lot of causes. Use of helmets, prolonged use of helmets. Basically helmets contain thermocol inside and they trap a lot of heat, and that localized heat environment does cause damage to the roots. So the basic cause in the largest majority of patients is genetic in nature, but there are small factors which we can modify, like smoking, diet, stresses, work profiles. Water would be difficult to modify, but spa treatments, colors, use of helmets, these can be modified to improve further. I wanted to spend a couple of minutes over the medical treatment of hair fall. Now we need to be very clear when we're talking of hair restoration. It is a combination of medical treatment and surgical treatment. The medical treatment handles the hair fall part and the surgical treatment handles the hair loss part. So where there is an absolute loss of hair, that is where we would do a hair transplant. And when someone is losing out hair or has some hair present in the recipient area, we would consider the addition of the medical treatment. Now the basic of any medical treatment is the use of minoxidil. You will come to know कि हम hair fall को reduce कैसे कर सकते हैं. First, diet, high protein diet. आप green leafy vegetable diet जिसमें minerals बहुत ज़्यादा जाते हैं. Then oily food को avoid करें, बहुत ज़्यादा greasy food को avoid करें. Nuts, walnuts हैं, almonds हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. Then हमारी डाइट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. इसके अलावा अगर मेडिकल कंडीशन है तो उसको पहले ट्रीट करें. विटामिन डी के आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. देन बालों की कलरिंग रोकें. कलरिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, केराटिन ट्रीटमेंट्स वगैरह आपको मिनिमाइज करने हैं, बिकॉज जो हाई हीट इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं उससे रूट्स को परमानेंट डैमेज हो जाता है. कभी हेलमेट पहन रहे हैं तो मिनिमाइज करें हेलमेट यूज़ फर्स्ट. सेकेंडली हैंकी डाल लीजिए ताकि डायरेक्ट थर्माकोल की हीट आपके सर पे ना लगे. एंड जब भी हेलमेट निकालते हैं, अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए पहन रहे हैं तो एक बार सर को वॉश जरूर कर लीजिए. बाल धोते टाइम पे डोंट यूज़ वेरी हॉट वाटर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. लूकवार्म वाटर हो, कोल्ड वाटर हो सर के लिए तो इट इज़ बेटर. जितना गर्म होता है उतनी रूट्स को डैमेज हो जाता है. स्मोकिंग कम से कम करिए, अगर नहीं रोक सकते हैं तो मिनिमाइज कर दीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फिजिशियंस को दिखाइए. अगर आपको पीसीओडी या थायराइड की प्रॉब्लम है तो हमको उसको ट्रीट करना है. इसके अलावा हेयर फॉल जब बहुत प्रोग्रेस कर जाता है तो हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है. अगर बालों में थिनिंग है तो भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इन बिटवीन दी हेयर. उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो जस्ट लेट दी कोऑर्डिनेटर नो एंड फिर हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट की डिस्कशन भी कर देंगे.
हेयर फॉल की मेडिकल ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। सो ये वीडियो मेल पेशेंट्स के लिए है जिनको हेयर फॉल हो रहा है। सो ब्रॉडली हमारा एम क्या है कि हम बालों को स्ट्रांग बनाएं और स्किन में ब्लड सप्लाई बेस्ट करें। तीसरी चीज़ फिनास्ट्राइड जो कि टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट, अगर हमको स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ाना है तो रोल ऑफ मिनॉक्सिडिल और पीआरपी। पीआरपी मोर इफेक्टिव है, मैंने पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा क्यों। सो पीआरपी करिए रेगुलरली जिससे आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाए। सेकेंडली, हमको रूट्स को स्ट्रांग करना है, उसको मेन्योर देना चाहते हैं, खाद देना चाहते हैं। सो वो होता है सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स आप रेगुलरली लेते रहें। फैक्ट किट आता है जिसको आप रेगुलरली लेंगे तो आपका ओवरऑल हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। तीसरी चीज़ फिनास्ट्राइड। नाउ हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन घूम रहा है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो अगर हम फिनास्ट्राइड 1 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डेज, सिर्फ ऑल्टरनेट डेज हफ्ते में 3 बार लेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव है आपके फर्दर हेयर फॉल को रोकने के लिए। साइड इफेक्ट प्रोफाइल आपको इंटरनेट पे मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली फिनास्ट्राइड के साथ साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। ना हमारे क्लिनिक की जो यूएसपीज हैं वो ये है कि हम 5 डिफरेंट टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। जो टेक्निक्स हैं वो है एक स्ट्रिप प्रोसीजर जिसको FUT बोला जाता है। उसमें हम लोग पीछे से एक हेयर बेयरिंग स्ट्रिप को निकाल के एंड वी सेपरेट ईच हेयर और एक एक करके बालों को जो हमारा रेसिपिएंट जोन है उसमें लगाते हैं। सेकेंड टेक्निक होती है FUE या एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। उसमें पीछे पंच वाइज एक एक पंच कर करके एक एक ग्राफ्ट को निकाल के लगाया जाता है। थर्ड टेक्निक विच इज आवर स्पेशलिटी इज लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट। अगर कोई पेशेंट है जो शेव नहीं करना चाहते बिल्कुल एंड इवन नेक्स्ट डे ऑफिस जाना चाहते हैं तो उसमें सिचुएशन में हम लोग लंबे बाल लगा देते हैं। सो वी टेक आउट लॉन्गर हेयर, वी डोंट ट्रिम ऑफ एट ऑल एंड इम्प्लांट इन बिटवीन एग्जिस्टिंग हेयर सो द पेशेंट्स अपीयरेंस इज प्रिजर्व्ड। फोर्थ टेक्निक होती है रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट जो कि एक्सट्रैक्शन टेक्निक की एक मॉडिफिकेशन है। उसमें वी यूज अ रोबोटिक मशीन टू टेक आउट द हेयर। लास्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स। सपोज हमको 9,000 या 10,000 फॉलिकल्स लगाने, देन वी मिक्स डिफरेंट टेक्निक्स एंड टेक आउट द हेयर। वी गिव अ 100% अश्योरेंस ऑफ रिजल्ट। अगर हम लोग 5,000 बाल इंप्लांट करेंगे तो 5,000 ग्रो करेंगे। वी इनफैक्ट हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन आवर टेक्निक कि वी इवन गिव अ मनी बैक गारंटी कि अगर रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो वी विल ऑफर अ मनी बैक इन टर्म्स ऑफ कि कितने बाल ग्रो करे या कितने नहीं करे। सो इतना कॉन्फिडेंस है हम लोगों को अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स में। ना हेयर ट्रांसप्लांट की जो रिकवरी है वो ना बराबर, देयर इज ऑलमोस्ट नो रिकवरी पीरियड। अगर चाहें तो इवन नेक्स्ट डे आप बैक टू ऑफिस जा सकते हैं। ऑलमोस्ट नो पेन, मैक्सिमम 6 से 8 घंटे 12 घंटे तक, जो कि नॉर्मल पेन किलर से इजीली मैनेज हो जाता है। एंड 95% पेशेंट्स हमारे नेक्स्ट डे ऑफिस में दे आर देयर। एंड जो रिजल्ट है वो करीब 8 से 9 महीने लेता है। ट्रांसप्लांट किया उसके 2.5 से 3 महीने के बाद बालों की ग्रोथ होती है एंड देन ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स द हेयर कीप्स ग्रोइंग एंड एक फाइनल रिजल्ट ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स बाद आता है। काफी पेशेंट्स पूछते हैं कि कोई प्रिकॉशंस लेने हैं क्या ट्रांसप्लांट के बाद। सो दे आर वेरी वरिड कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी या कोई प्रिकॉशन तो नहीं लेने पड़ेंगे। सो 100% इट इज एब्सोल्युटली श्योर कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल रिटर्न अश्योरेंस होती है। एंड आपकी प्रिकॉशन वाइज सिर्फ 1 वीक तक आपको स्पोर्ट्स अवॉइड करने हैं, कोई जिम एक्टिविटी अवॉइड करनी है, अदरवाइज आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखनी है अपने ऊपर। नाउ अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो सेफेस्ट मीडियम इज लिबरेट विच अश्योर्स यू ऑफ गुड डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन। मेरी क्लिनिक साउथ एक्सटेंशन में आप हमको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2, दिल्ली। नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो हमारे सारे हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के लिए है जो अभी प्लान कर रहे हैं कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और कुछ कॉस्ट को लेके परेशान रहते हैं कि 10 जगह फ़ोन कर रहे हैं और हर जगह अलग अलग कॉस्ट मिल रही है, ऐसा क्यों? तो ये समझना थोड़ा उनके लिए कठिन भी हो जाता है और एक अच्छी क्लिनिक को एक एवरेज क्लिनिक से डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कहीं पे कॉस्ट 20,000 बताते हैं, कहीं पे 5 लाख बताते हैं। सो ये कैसे समझें कि हम किस तरह कॉस्ट को अंडरस्टैंड करें? तो ये मैं गाइड बनाई है मैंने पेशेंट्स के लिए, एक इनिशिएटिव है डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ, ताकि हमारे पेशेंट्स और सारे पेशेंट्स के लिए एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट्स करते हैं दिल्ली और गुड़गांव में। जो फैक्टर्स जिन पे कॉस्ट डिपेंड करती है वो हैं कौन सी टेक्निक, नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हम लोग लगाते हैं,
डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन, सेंटर क्या वो ब्रांड है या वो डॉक्टर की ओन्ड सेंटर है, अगर पीआरपी या कोई भी और ट्रीटमेंट्स ऐड ऑन किए जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती हैं, और अगर एक अच्छा फॉलो अप प्रोग्राम है तो डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम टेक्निक्स की बात करें, अगर हम एफ करना चाहते हैं तो उसमें रोबोटिक टेक्निक अगर हम यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। हमारे पास हार्ट्स मशीन है हमारे सेंटर्स पे, और सेंटर्स पे और मशीन्स भी हैं, तो उनके चलते कॉस्ट डेफिनेटली थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। रिजल्ट्स में 3 to 5% की इम्प्रूवमेंट जरूर आती है। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट जो एक बहुत एक्सक्लूसिव है, जो कि मैं समझता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट की एक स्किल लेवल में सबसे टॉप पे, और उस स्किल लेवल पे प्लास्टिक सर्जन्स के अलावा कोई पहुंच ही नहीं सकता लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक में। ये तो हमारा चैलेंज है, और मेरी नॉलेज में इंडिया में लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक जो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है वो कोई और नहीं करता है। इसकी कॉस्ट दुबई में 15 से 20 लाख रुपए है। ऑफ कोर्स हम लोग करते हैं उससे मच मच चीपर रेट्स पे, बट लॉन्ग हेयर टेक्निक का मतलब हम बाल काटते नहीं है, ना डोनर ना रेसिपिएंट। आप तीसरे दिन ऑफिस जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है। एक और टेक्निक के बारे में पेशेंट्स हमें फ़ोन करते हैं, डीएचआई टेक्निक। नाउ ये मेरा अपना ओपिनियन है, एक डिस्क्लेमर है, ये आप माने या ना माने, बट एज अ डॉक्टर मेरा अपना ओपिनियन है कि इस प्रोसीजर की जो हाई कॉस्ट है वो प्रॉबेबली जस्टिफाइड नहीं है इन टर्म्स ऑफ द रियल गेन्स, कि आप क्या अचीव कर रहे हैं इतनी हाई कॉस्ट देने के लिए। सो डीएचआई प्रोसीजर इन इम्प्लांटर्स के साथ किया जाता है जो कमर्शियली ईजिली अवेलेबल है। मेरे व्यू में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स फार बेटर हैं, मोर इकोनॉमिकल हैं, क्योंकि आप बड़े ट्रांसप्लांट्स एक ही दिन में कर सकते हैं। सो आपका टाइम और पैसे दोनों बचते हैं। कितने फॉलिकल्स हम लोग लगा रहे हैं, सपोज हम लोग 2000 फॉलिकल लगा रहे हैं या 6000 फॉलिकल लगा रहे हैं, तो कॉस्ट उस पर वेरी करती है। बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं ग्राफ्ट और फॉलिकल्स के बीच में, तो उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर रखिए। और हो सकता है कोई आपको फोन पे अगर डिस्कस कर रहा हो तो आपको कम नंबर ऑफ फॉलिकल्स बताएं, ताकि आपको कॉस्ट कम लगे और आप अट्रैक्ट हो जाएं। सो एक प्रॉपर असेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रॉपर कॉस्टिंग्स के लिए। एक चीज़ और समझे, फ़ोन पे कॉस्टिंग्स कभी भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है असेस करना। कई बार हम लोग ये भी असेस नहीं कर पाते हैं कि डोनर एरिया कितना अच्छा है या ख़राब है। सो फोटोग्राफ्स के बेसिस पे बहुत मुश्किल होता है, इन पर्सन कंसल्ट ऑलवेज मच बेटर होती है। बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट मच मोर एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज उसमें एक ग्राफ्ट में एक बाल होता है, सिंगल फॉलिकल होता है, और टाइम बहुत लगता है बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट करने में। क्वालिफिकेशंस मेरी समझ से सबसे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो आपके डॉक्टर हैं वो हमेशा एमसीएच या डीएनबी बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन होने चाहिए। एंड क्योंकि उनकी इतनी लंबी ट्रेनिंग होती है, उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, और उनके रिजल्ट्स मच बेटर होते हैं, देयरफॉर कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा है। बट क्या आप अपनी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं? बहुत सारे अदर क्लिनिक्स आते हैं, बहुत सारी अदर स्पेशलिटीज़ आजकल हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं, वो बहुत सस्ते में भी हो जाती हैं। बट मेरी एक ही एडवाइस है, प्लीज़ डिग्रीज ज़रूर चेक कीजिए। ऐसा ना हो कि आप प्लास्टिक सर्जन समझ के किसी और स्पेशलिटी के डॉक्टर के साथ फंस जाएं और आप फिर लाइफ लॉन्ग उसको रिग्रेट करें। नाउ ये भी एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 13 साल से हेयर ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, कि क्या एक ब्रांड और एक डॉक्टर ओन सेंटर में फ़र्क हो सकता है। कुछ ब्रांड्स हैं इंडिया में बड़े बड़े, मैंने सिर्फ 2 नाम लिखे हैं, इसके अलावा और भी ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, और बहुत फैक्टर्स होते हैं इनमें। क्या एक डॉक्टर ओन्ड एंटरप्राइज बेनिफिशियल ज़्यादा नहीं होगा? अगर आपको वही और उससे भी बेटर स्टैंडर्ड्स, बेटर सेफ्टी और इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, तो शायद ब्रांड्स को आप दोबारा इवैल्यूएट करें। उस वजह से आप अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा इकोनोमाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अगर मैं प्रायोरिटी में देखूं, टेक्निक नंबर 1, डॉक्टर्स क्वालिफिकेशंस नंबर 2, नंबर ऑफ फॉलिकल्स, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, और कॉस्ट की वजह से है ट्रांसप्लांट मत कराएं, बिकॉज ईएमआई ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। ये एक मैंने क्विक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको वीडियो मुझे कुछ भी पूछना है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 9811994417 पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ येस के साथ कमेंट जरूर डालिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हेयर ट्रांसप्लांट का वेबिनार वेरी सून करूंगा, अगले हफ्ते एक वेबिनार हम लोग करेंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए, जिसमें आप अपने सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं।